Hello students, today we are going to discuss differentiation of higher order derivatives. Definition: the derivative of y with respect to x is called first order derivative and it is denoted by dy by dx. In previous lectures we discussed only first order derivative. Now we discuss higher order derivative. The derivative of dy upon dx with respect to x is called second order derivative. एक बार हमने y का डिफरेंशिएशन कर दिया और फिर से अगेन अपन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. द डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर with respect to x is called third order derivative and it is denoted by d cube y upon dx cube. Alternate notations. अगर आपको y गिवन है क्वेश्चंस में तो उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? dy अपॉन dx. वी कैन आल्सो राइट y डैश. अब dy डैश लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो वी कैन यूज सिंबल y डैश, y1, dy, or if fx is given then f dash x. Second order derivative d square y upon dx square, we can write y double dash, y2, f double dash x or d square y. Third order derivative symbol is y triple dash, y3 और अगर fx है तो f के ऊपर ट्रिपल डैश एंड डी क्यूब वाई. और nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाई एन, सफिक्स में वाई एन, एफ एन एक्स और डी एन वाई. लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स. इफ y इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, show that y2 plus n square y equal to 0. There are two methods. First find value of y1, then y2, and then put value of y2 and y in this equation. y2 plus n square y equal to 0. So let's start. Since y equal to a cos nx plus b sin nx, differentiating with respect to x. y का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? y1 और dy by dx y dash, so we can use y1, a constant as it is, and differentiation of cos minus sin nx into differentiation of nx n plus b constant, differentiation of sin nx cos nx into differentiation of nx n. अब नाउ सिंप्लीफाई करते में हमेशा एक ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब a cos nx ये साथ में रहने चाहिए. सो फर्स्ट राइट माइनस साइन, देन n, देन a इंटू साइन nx. सिमिलरली प्लस n इंटू b इंटू cos nx. अब हमको y2 निकालना है, y2 प्लस एन स्क्वायर वाई. सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x, y2 इज इक्वल टू माइनस एन ए कॉन्स्टेंट और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एन एक्स cos nx into n.
differentiation of nx n plus nb constant as it is, and differentiation of cos nx minus sin nx into differentiation of nx n. अब now simplify. Minus n square a cos nx plus n square b sin nx. So n square is common. Sorry, here minus plus into minus minus. So minus n square b sin nx minus n square common. So we get a cos nx plus b sin nx. Minus n square into y, because a cos nx plus b sin nx is equal to y. So next step, y2 plus n square into y is equal to 0. Hence proved. Problem number 2. If y equal to aemx plus bnx, show that y2 minus m plus n y1 plus mn y equal to 0. जब भी क्वेश्चन में a इंटू e टू द पावर समथिंग क्वेश्चन है, उनमें थोड़ा एक डिफरेंट मेथड यूज होता है. देर आर सो मेनी मेथड इन डेट एक्सरसाइज. वी कैन सॉल्व ईच क्वेश्चन बाय मोर देन 2 मेथड. First write y equal to a e to the power mx plus b e to the power nx. गिव इक्वेशन नंबर 1. अब जो हमें प्रूव करना है उसमें कहीं भी e टू दी पावर mx और e टू दी पावर nx नहीं, यानी इनको आप एलिमिनेट करते जाओ. और डिफरेंशिएट क्या क्या करना है, अपन को y1 और y2 लाना है. अभी तक अपने पास y है. So differentiating with respect to x, differentiating with respect to x. अब y का क्या होगा डिफरेंशिएशन, y1 इज इक्वल टू a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर mx, e टू द पावर mx, और फिर mx का कितना हो जाएगा m प्लस b कांस्टेंट एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर nx, e टू दी पावर nx, और nx का कितना हो जाएगा n. अब विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 किसी एक को आप एलिमिनेट कर दो, इधर e टू दी पावर nx और e टू दी पावर mx. अब देखो मैं किसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, b इंटू e टू दी पावर nx को, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1. m constant into a e to the power mx plus n constant as it is, और in place of b to the power e nx क्या लिख सकते हैं अपन, y माइनस a e to the power mx. इसको उधर भेज दो. सो y माइनस a e to the power mx. Next step, simplify. m into a e to the power mx plus ny minus n a e to the power mx. Next step, फर्स्ट और लास्ट टर्म e टू द पावर mx कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं अपन. सो वी गेट m माइनस n, और आउटसाइड a इंटू e टू द पावर mx
plus ny. दिस इज वैल्यू ऑफ y1. ये y1 की वैल्यू चल रही थी ऐसे. नेक्स्ट स्टेप में अब आपको e⁻mx को भी एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, जिसको एलिमिनेट करना है उस टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म को उधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में. ऑलवेज आफ्टर दिस स्टेप आपको क्या करना है, एक्स और वाई की टर्म्स को सेपरेट करना है. सो y1 माइनस एन वाई इज इक्वल टू m माइनस एन इंटू e⁻mx. गिव इक्वेशन नंबर 2. अब नाउ राइट अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x. अब y1 का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, y2 माइनस एन कॉन्स्टेंट और y का क्या होगा y1, यानी क्या मिलेगा y2 माइनस एन y1. y2 माइनस एन y1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या था आपका m माइनस एन इंटू ए कॉन्स्टेंट, और डिफ्रेंशियल किसका करना है e⁻mx का. तो e⁻mx और डिफ्रेंशिएशन ऑफ mx क्या होगा m. अब आपको e⁻mx को एलिमिनेट करना है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, देखो आप m माइनस एन इंटू e⁻mx. जस्ट इक्वेशन 1 m माइनस एन e⁻mx. इसके प्लेस पर अपन क्या रख सकते हैं y1 माइनस एन वाई, y1 माइनस एन वाई इंटू m, y2 माइनस एन इंटू y1. Now simplify y2 minus n into y1 is equal to my1 minus mny. अब now rearrange. So y2 माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, जब इसको उधर भेजेंगे तो अपन तो अंदर आएगा m प्लस n इंटू y1 और send minus mny from RHS to LHS. So we get plus mny is equal to 0. Hence proved. चेक करो आप, ये आंसर था y2 माइनस m प्लस एन वाई, y2 माइनस m प्लस एन y1 प्लस mny इक्वल टू 0. नेक्स्ट प्रॉब्लम, if y equal to a cos log x plus b sin log x, show that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0. So find y1 and y2 from this equation. पहले इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा y1, then again differentiate, then we get y2, और both the value अपन को इसमें रखनी है. If we get 0 then so first write y equal to a cos log x base e plus b sin log x base e, differentiating with respect to x. Or give equation 1 also, it is required at last. अब differentiation of y with respect to x, y1 is equal to a constant as it is, differentiation of cos minus sin log x base e into differentiation of log x 1 upon x.
plus b constant, differentiation of sine cos log x into differentiation of log x 1 upon x। अगर आप फिर से इसका डिफरेंशिएशन करें y2 तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, सो बेटर मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय एक्स, 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो वी गेट x इंटू y1 इक्वल टू माइनस a साइन लॉग एक्स बेस ई प्लस b कॉस log x बेस ई। अब डिफ्रेंशिएशन करना आसान है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब x y1 का डिफ्रेंशिएशन करना किससे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से, तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 y2 प्लस y1 एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 इज इक्वल टू, अब इन राइट हैंड साइड माइनस ए कांस्टेंट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन cos log x बेस ई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x। प्लस b कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos माइनस साइन log x बेस ई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x। अब जो प्रूव करना उसमें क्या चाहिए अपन को, एक्स स्क्वायर इंटू y2 मीन्स 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लो RHS में और मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, so we get x square y2 plus x y1 is equal to minus sign minus a cos log x base e minus b sin log x base e। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू, नाउ टेकिंग माइनस साइन कॉमन, अब माइनस साइन जैसे अपन कॉमन लेंगे देन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड दिस होल क्वांटिटी इज फ्रॉम इक्वेशन 1 y, क्या है y है, सो नेक्स्ट स्टेप वी गेट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ y इक्वल टू x log x अपॉन a प्लस बी एक्स, प्रूव डेट एक्स क्यूब y2 इक्वल टू एक्स y1 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब जो प्रूव करना उसमें कहीं भी log नहीं है, यानी आपको क्या करना है, log को एलिमिनेट करना है। सो फर्स्ट राइट y इक्वल टू x log x अपॉन a प्लस बी एक्स, अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल से एक्स इंटू लॉग, यानी लॉग उसमें रहेगा स्टिल, तो बेटर हम लॉग की प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। एक्स को आप RHS से LHS में भेज दो, यानी y अपॉन एक्स प्रोडक्ट में था इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स, सो वी कैन राइट लॉग एक्स माइनस लॉग
a plus bx. अब now differentiating with respect to x. A first differentiation of left hand side y upon x, use divide rule. X whole square, x as it is, differentiation of y, y1 minus y as it is, and differentiation of denominator x1 is equal to differentiation of log x 1 upon x minus डिफ्रेंशिएशन ऑफ log a प्लस बी एक्स. तो पहले अपन log का करें तो क्या आएगा 1 अपॉन a प्लस बी एक्स एंड देन अपन करेंगे a प्लस बी एक्स का a का 0 और बी एक्स का b कॉन्स्टेंट कॉमन और x का 1. अब नाउ सिंप्लीफाई x y1 माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू taking LCM is x into a plus bx, cross multiply a plus bx minus x into bx and bx cancel and x and square cancel. So next step we get x y1 minus y is equal to a upon a into x, ax upon a plus bx. Give equation number 1. अब जस्ट सी क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है एक्स वाई वन माइनस वाई होल स्क्वायर, यानी आपको इसकी वैल्यू तो मिल गई एक्स वाई वन माइनस वाई. अब आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना वाई टू निकालना है. तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वाई वन माइनस वाई तो है ये. आई विल राइट अगेन हियर एक्स वाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स. मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, एक्स वाई वन माइनस वाई, एक्स वाई वन माइनस वाई इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब एक्स इंटू वाई वन, यूज प्रोडक्ट रूल. पहले अपन इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स वाई वन. सो एक्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई वन वाई टू प्लस वाई वन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन. सो वाई वन इंटू वन वाई वन माइनस. अब नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई वन इज इक्वल टू. अब नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ राइट हैंड साइड ax अपॉन a प्लस बी एक्स. सो फर्स्ट राइट a प्लस बी एक्स मीन्स डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मीन्स ax यानी a माइनस न्यूमरेटर मीन्स ax एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर a प्लस बी एक्स का क्या आएगा a का 0 और बी एक्स, तो b कॉमन और x का 1 यानी b आएगा. नाउ सिंप्लीफाई y1 एंड y1 कैंसिल. सो वी गेट x into y2 is equal to, open the bracket, a square plus abx minus abx upon a plus bx whole square.
ABX and ABX कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप, अब जो आपको प्रूव करना है उसमें क्या प्रूव करना है, एक्स क्यूब इंटू वाई टू, एक्स क्यूब चाहिए, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो क्या आएगा, एक्स क्यूब इंटू वाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, एक्स क्यूब इंटू वाई टू and right hand side is square of x y1 minus y. So from equation 1, x y1 minus y whole square, hence proved. Next problem, if y equal to x plus x square plus 1 raised to the power m, then show that एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है, यानी रूट को अपन को एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट राइट वाई इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल रेज टू द पावर m, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y1। अब पहले पावर करेंगे तो m आगे आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर m माइनस 1 इंटू, अब किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x का तो हो गया 1 प्लस, पहले अपने किसका किया, x का क्या हो गया 1। अब नाउ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना हो गया 2x। अब नाउ कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। अब नाउ टेकिंग एलसीएम, सो m x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर m माइनस 1 इंटू, अब एलसीएम कितना आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नाउ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर m माइनस 1 एंड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर 1, यह पावर कितनी 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट x रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n, तो अपन क्या करते हैं पावर 8 कर लेते हैं, x रेज टू पावर m प्लस n। सो x प्लस, अगर बेस सेम है तो क्या होगा पावर 8 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर m अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप, y1 इज इक्वल टू, अब x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर m फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, किसके इक्वल है ये, y के इक्वल है। सो वी गेट y1 इक्वल टू my अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब उनको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू, यानी एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है। यदि इसका 1 मोर टाइम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, थोड़ी कैलकुलेशन टफ होगी कि डिवाइड रूल यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई y1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1।
So root x square plus 1 into y1 is equal to my। अब इसका हम स्क्वायर भी कर देते तो डिफरेंशियल और आसान हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x. अब there are two function in product, x square plus 1 into y1 square. So x square plus 1 as it is। अब y1 स्क्वायर का करेंगे तो पहले पावर का करेंगे तो 2 आ गया जाएगा 2y1 और फिर y1 का कितना हो गया y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज और x स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा 2x इक्वल टू एम स्क्वायर कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर, तो 2y और y का कितना हो गया y1। अब आफ्टर दिस क्या कॉमन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 2y1 कॉमन आ रहा है और इधर भी 2y1 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2y1। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2y1। अब 2y1 से अपन डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2। 2y1 से डिवाइड करें तो क्या होगा, ये 2y1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2। यहाँ से अपन 2y1 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा एक्स y1, सो प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू, अब इसको 2y1 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा एम स्क्वायर वाई। सो नेक्स्ट स्टेप वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। Hence proved. In next lecture, we will discuss more question based on higher order derivatives. Thank you. Have a nice day.